Very good. Now, children, tell me, why do we fall ill? Why do we fall ill? Okay, very good. Due to pathogens, right? And pathogens, lack of immunity, very good. Yeah, this is internal reasons. Okay, now, yeah, but the pathogens, transmission, different modes of transmission of the disease. So that also can be one of the cause, one of the reason for transmission of the disease from infected person to healthy person. So we are talking about healthy person. All this is all about healthy and unhealthy person. So first of all, you should know if you are not ill, if you do not fall ill, so we can say that you are healthy. If you are falling ill, if you have felt ill, okay, so we can say that person is not healthy. So this is all about our health. Can you tell me what is health? What is health? Can you define health? How ca- how can you define health? Yes, tell me. A very good answer. Very good answer. A state of being well socially, mentally, and physically. Very good. So it's a complete well-being of a person in all aspects. That aspects may be physical fitness, physical health. That aspect will be social health. That aspect will be mental health. That aspect will be emotional health also. ठीक है, तो a person is healthy when he is fit in all aspects of the health. So what is health? A complete well-being, a complete, या ऐसे कह सकते हैं, this we can say that a state of complete well-being of a person in all aspects of health, या in all aspects. अब ये aspects क्या हो सकता है? that aspects may be that aspects may be mental, physical, that aspect may be social, एंड अभी एक और जुड़ चुका है, एक और एस्पेक्ट जुड़ गया है हेल्थ में, इमोशनल. तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट, यू हैव टू बी मेंटली फिट, यू हैव टू बी सोशली फिट, यू हैव टू बी इमोशनली फिट. तो इफ यू आर फिट इन ऑल एस्पेक्ट, if a person if a person if a person is fit, if a person is fit in all aspect, तो वो फिट हर एस्पेक्ट्स में फिट होगा. वो मेंटली फिट भी होना चाहिए. मेंटली फिट, सपोज मान लीजिए कि आपकी फिजिकली यू आर वेरी स्ट्रांग और यू आर ऑल्सो शार्प माइंडेड, बट कोई अगर डांट देता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, आप तुरंत रोने लगते हो, या फिर आप क्लासरूम में जब जाते हैं तो यू आर नॉट एबल टू क्या कहते हैं, share your feelings with others, you are not able to socialize yourself with others, so can we say that that person is healthy, that child is healthy? No, that child is not healthy because he is physically very strong. बहुत मजबूत है, बहुत strong person है, खाना पीना अच्छा मिलता है इसलिए strong हो गए. mentally you are very sharp, बहुत intelligent है पढ़ाई में, but आप कि फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं स्कूल में. इफ यू आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स इन द स्कूल, इफ यू आर नॉट सोशलाइज योर सेल्फ, you are not able to adjust with your friends in the school, if you are very much sensitive, कोई कोई अगर डांट दे थोड़ी सी तो उसमें रोने लग गए,
उसमें फिर पेरेंट्स को बुला लिया, इसे वो तो सब कुछ कर लिए, तो इफ यू आर, तो वी कैन से दैट यू आर नॉट इमोशनली ऑल्सो स्टेबल, इमोशनली स्टेबल नहीं है। तुरंत किसी ने कुछ बोल दिया, वो जैसे यू ब्रोक डाउन योर सेल्फ एंड यू स्टार्टेड क्राइंग, तो ठीक है, फिर कि किसी को मतलब कोई अगर थोड़ी से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, you know, तो you become excited and you started crying and you have uh, taken up all the things on your head, तो इस तरह से अगर आपके बिहेवियर हो जाता है, तो कह सकते हैं कि यू आर नॉट हेल्दी इमोशनली, यू आर नॉट इमोशनली फिट। तो वी हैव टू बी फिट इन ऑल एस्पेक्ट, इन मेंटली फिट होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, वी शुड बी हेल्दी फिजिकली ऑल्सो, वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी डिसऑर्डर और एनी कह सकते हैं एनी डिसफंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन, तो आप कह सकते हैं फिजिकली फिट हैं। सोशली यू आर एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स, है ना, यू आर एबल टू सोशलाइज विथ अदर्स, यू आर एबल टू एडजस्ट योर सेल्फ विथ अदर्स ऑल्सो, ठीक है, यू हैव अ वेरी शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर, तो ये सब अच्छी बात है। शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर, सोशलाइजिंग, एबिलिटी टू मेक more friends, so these are the good aspects of health। इमोशनली हेल्दी भी होना चाहिए। तो इफ अ पर्सन इज कंप्लीट वेल बीइंग, द स्टेट ऑफ अ पर्सन having complete well-being in all aspects of life, then we can say that the person is healthy, and this is health। What is health? The health is a state of complete well-being। ठीक है, सिंपल इतने ये इतना ही बोल सकते हो, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग, दिस इज कॉल्ड हेल्थ, दिस लाइन इज एनफ। और ये अगर ये सारा जोड़ देंगे तो इट बिकम्स अ गुड डेफिनेशन, ठीक है। सो पर्सन इज फिट इन ऑल एस्पेक्ट, अ पर्सन इज फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो वी कैन से दैट ही इज, क्या कहेंगे उसको, वो पर्सन हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी कहेंगे। तो लेट अस see this, what is health, what is health? If a person is socially fit, if a person is mentally fit, if a person is physically fit, then we can say that it's a complete well-being, the state of complete well-being, so this is health, state of complete well-being, ठीक है। हाँ बेटा, इस हेल्थ, तो आप समझ सकते हो ना कि आप हेल्दी कब माने जाएंगे आप, केवल आपका शरीर अच्छा है तो क्या हेल्दी कह सकते हैं? नो, आपको मेंटली भी फिट होना है, सोशली भी फिट होना है, फिजिकली फिट होने से काम नहीं चलेगा। तो आप हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हैं, कंप्लीट हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको हर एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना है, देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड एज हेल्दी पर्सन, यू विल बी considered as healthy person। आइए let us see, is health is health dependent on personal and social issues, yes or no? Is health, yes, social issue पर डिपेंडेंट है, yes, बिल्कुल, yes, it is dependent on personal issues and social issues also। social issues may be adjustment, है ना, एडजस्टमेंट विथ पियर्स, आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं पियर से, हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते अपने कलीग के साथ, तो आई एम ऑल्सो नॉट हेल्दी। if you are not able to adjust yourself with your peer groups, you are also not healthy। पर्सनल इश्यूज भी हैं, पर्सनल इश्यूज दैट मे बी इमोशनल ब्रेकअप ऑल्सो, कि बहुत जल्दी आप अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हो, या यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी आपके कुछ पर्सनल इशू है कि आप बहुत हाइजीनिक नहीं रहते हो, अनहाइजीनिक रहते हैं, तो आपके पर्सनल इशू से रिलेटेड हेल्थ, आपका फिर हेल्थ, आप हेल्दी रहोगे क्या? if you do not follow personal hygiene, do not inculcate पर्सनल हाइजीन, तो आप हेल्दी रह पाएंगे?
नहीं रहेंगे, वो आपका पर्सनल इश्यूज होगा, पर्सनल इश्यूज है। या फिर आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फैमिली में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है मान लीजिए, या फिर कुछ इश्यूज है घर में, तो आप उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपको हमेशा घर में डांट पड़ रही है, पड़ती है क्या? तो अगर डांट पड़ रही है तो उस समय भी आप हमेशा, आपका मूड ऑफ रहेगा। तो मूड ऑफ रहेगा तो धीरे धीरे करके ये आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो पूरा कम्प्लीटली बिहेवियर पैटर्न विल बिकम चेंज्ड, और दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ। दैट इज योर पर्सनल इश्यूज। सोशल इश्यूज तो हैं ही, तो ये पूरे उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन पर्सनल एंड सोशल बोथ इश्यूज। Now let us see. Now you tell me बेटा, factors that determine the better health। ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपके बेटर हेल्थ को डिटरमाइन करता है? आपको अगर बेटर हेल्थ चाहिए तो कौन कौन से फैक्टर जो है आपको अफेक्ट कर सकता है बेटर हेल्थ को? फर्स्ट फैक्टर बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, इफ यू वांट टू बी हेल्दी, देन व्हाट शुड यू डू? व्हाट हैबिट? Very good. So proper diet. So we can say that we should have balanced diet. Balanced diet आप हेल्थ को कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट या फूड। सेकेंड वन इज योर फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, नॉट ओनली फिजिकल, सोशल इन्वायरमेंट, environment। Yes, now yoga and exercise, okay fine, yoga and exercise। Yes, very good. Not only personal beta, personal and community hygiene also। कम्युनिटी, मान लीजिए आप बहुत साफ सुथरा रहते हो, लेकिन आपके आसपास का गंदगी आप पूरा गंदा रख रहे हो, तो आप हेल्दी रह पाएंगे? रह पाएंगे क्या? नहीं। सो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन बोथ शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज क्या बेटा? एजुकेशन एंड, यस वेरी गुड, एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये भी आपके सोशल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड लिटरेसी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स आवर हेल्थ। अगर आप एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, तो यू कैन टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, वेरी गुड। और बताइए, दिस इज बैलेंस डाइट आप कह सकते हो, फूड हैबिट भी बोल सकते हैं। ये आपकी फूड हैबिट भी, आप किस तरह का खाना खाते हो उस पर डिपेंड करता है। और बताइए नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? सैनिटेशन, वो तो इसी में आ जाएगा ना, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। स्टेइंग हैप्पी ऑल द टाइम, तो दैट इज स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हो? स्ट्रेस अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका इमोशनल और मेंटल, ये दोनों फिटनेस नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर हेल्थ, isn't it? So balanced diet सबसे important factor है, balanced diet। second important factor is personal and community hygiene। थर्ड important factor है आपके physical and social environment। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए लिटरेट है, नहीं है, इलिटरेट है, हमेशा मतलब कुछ एब्यूजिंग वर्ड यूज करते हो, तो आप भी वैसे ही सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? You will learn the same thing, and you will learn the same thing, and you will use the same thing. If you use the same thing in the school,
with your peers, so your peers will be sitting with you. Will they make friend you? Will they make you friend? Will they do friendship with you? नहीं करेंगे। अरे ये तो गाली देता है, वाह वाह, हम इसके साथ क्यों रहेंगे? नहीं, बेटा इससे दूर रहो, इसके साथ रहोगे गाली गलौज सीखोगे ऐसा। तो आप क्या है कि आपका सोशल एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू बिकम सोशली हेल्दी। तो सोशली हेल्दी के लिए क्या आपके सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। आप इसलिए कहते हैं गुड कंपनी विल मेक यू गुड बेटर पर्सन। इसलिए हमेशा अपने अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए, जो जिससे आपके सोशल इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिले। फिजिकल तो अच्छा मिलेगा, अगर आप स्कूल में हैं तो दैट इज फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड उसके साथ जो लोग जिस जिस किस तरह के फ्रेंड के साथ आप रहते हो, दैट बिकम्स योर सोशल इन्वायरमेंट। आप किस फैमिली में रह रहे हैं, कैसे फैमिली में रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, दैट बिकम्स योर सोशल इन्वायरमेंट। वहाँ के लोग, आपके जो नेबर्स कैसे हैं, अगर नेबर्स हमेशा झगड़ा करने वाले हैं तो आप भी झगड़ा करना ही सीखेंगे ना। तो आपके इन्वायरमेंट का इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखें। Environment will be healthy, you will be healthy. Your food will be healthy, you will be healthy. Your personal habits will be healthy, then you will be healthy. If uh, you will keep your personal body clean, then you will be clean and healthy. So if you are educated, then you can follow the healthy measures. और स्ट्रेस सबसे बहुत बड़ी बात है, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे तो आपको हेल्दी रह पाएंगे। स्ट्रेस और जो कहते हैं डिप्रेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज के हेल्थ को खराब करने के लिए, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर द फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर हेल्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, दिस में कम। नाउ अब कोई बोलेगा कि व्हाट इज डिजीज, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज डिजीज, आप तो हेल्दी तो समझ गए कि ये हेल्दी है, किसको कहेंगे कि वो डिजीज है? हेल्थ समझ गया आपने, अब बताइए डिजीज क्या है, व्हाट इज डिजीज नाउ। कब कहेंगे कि आपको कोई बीमारी हो गई, या आप यू हैव फॉलन सिक, सिक हो गए आप, यू हैव फॉलन इल, आप बीमार पड़ गए। व्हेन डू यू से? सी चिल्ड्रन, दिस इज, दिस मतलब नॉट, एंड इज मतलब इजी। इफ यू आर नॉट फीलिंग इजी, इफ यू आर नॉट फीलिंग इजी टुडे, हमेशा कहते हैं अरे आई एम टुडे आई एम नॉट फीलिंग इजी, मतलब यू आर नॉट फीलिंग इजी का मतलब यू आर नॉट फीलिंग गुड देन, है ना। इफ यू आर नॉट फीलिंग, फीलिंग का मतलब आप महसूस नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग इजी, तो नॉट इजी, इफ यू आर नॉट फीलिंग इजी मतलब यू हैव डिजीज। दिस इज, दिस इज, दिस इज, दिस इज मीन्स नॉट इन इज, नॉट, दिस इज मीन्स नॉट इन is मतलब in good state। when your body is not in good state, so we can say that I have some problem in my body। if you are having some problem in your body, then you are diseased, ठीक है, you have disease। तो disease नाम से ही, इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। दिस इज नॉट फीलिंग इजी, नॉट इन इज, ठीक है। तो नॉट फीलिंग इजी, तो आप कह सकते हो कि, और ये आप कब इजी फील नहीं करते हैं? when any organ of our body is not functioning, not is not functioning properly। अगर कोई भी एक ऐसा पार्ट आपके बॉडी का वो अगर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, है ना, फंक्शनिंग properly, then we can say that we have disease, ठीक है। और you can say that कि आप, जैसे कि अभी सौम्या ने कहा कि आप एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहां पर आप कि जो भी एस्पेक्ट्स है हेल्थ के, उस किसी भी एस्पेक्ट्स में अगर आप फिट नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपको डिजीज है ना।
अब देखिए, अब how will you differentiate between healthy person and disease free person? Are all disease free person healthy? No, क्योंकि डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। डिजीज मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी का प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए आप डिजीज है आप में। डिजीज का मतलब यही होता है ना कि कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। If any organ in our body is not working properly, then we can say that I have some disorder, I have some disease. डिजीज के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स होते हैं ना, डिजीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स क्या हो सकता है? जब कोई भी ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? आपको पेन होगा, दर्द होगा, बॉडी में पेन होने लगता है तो कहते हैं अरे आज बहुत बॉडी में दर्द हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में। पेन एक सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम्स क्या है बॉडी का? स्वेलिंग, कोई पार्ट आपका स्वेल हो जाता है तो उससे भी एक एक अनदर सिम्टम्स है स्वेलिंग। एंड द मेजर सिम्टम, वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स इज फीवर। फीवर, अगर फीवर है तो मतलब ज़्यादातर ऐसी डिजीज है जहाँ पर आपको फीवर आता है, तो ये वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स है। अगर फीवर है आपके बॉडी में तो सर्टेनली योर बॉडी इज, मतलब सम पार्ट ऑफ योर बॉडी या वन पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। फीवर है, जरूर कुछ अंदर में हलचल मचा है, इसलिए फीवर है। ठीक है। स्वेलिंग इसलिए हुआ है कि कुछ तो अंदर के लिक्विड जो के टिश्यू फ्लूइड है या सेल फ्लूइड है या फिर ब्लड है, वहां से कुछ इशू है, कुछ डिसऑर्डर्स है, कुछ डिसफंक्शन है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अनईजी फील कर रहा है, इसलिए स्वेलिंग है। पेन इसलिए हो रहा है कि कोई भी पार्ट आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है या कहीं पर कुछ इश्यूज होगा, लैक्टिक एसिड बन गया है या कुछ हो गया है, तो दैट कॉजेज पेन। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। तो हम अगर ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स है तो आप डिजीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप मान लीजिए इसमें कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं है, ठीक है, पेन भी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, को सारे बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर रहा है आपके बॉडी में, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली हेल्दी पर्सन हो, कह सकते हैं। आपके सारे ऑर्गन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो आपको हम क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे या डिजीज फ्री कहेंगे? आई विल कॉल यू डिजीज फ्री। यू मे और मे नॉट बी हेल्दी, हो सकता है आप हेल्दी भी हों, जरूरी नहीं कि आप हेल्दी नहीं हो, आप हो सकता है आप हेल्दी भी होंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी हेल्दी ऑल्सो। बिकॉज आपके कोई बॉडी का फंक्शन, कोई ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप डिजीज फ्री तो हैं, आप में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते चल रहे हो, आपको हेल्दी कहेंगे? कहेंगे क्या हेल्दी? आप बताइए। आप लोगों के साथ ठीक से सोशली आप बिहेव नहीं कर रहे हो, किसी के साथ आप जो है फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, या आप कुछ डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, तो क्या हम कहेंगे कि आप हेल्दी हैं? नहीं कहेंगे। आप डिजीज फ्री हैं, आपका कोई भी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो सकते, फिर भी नहीं हो सकते, क्योंकि हेल्दी होने का मतलब क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये सभी एस्पेक्ट्स में आपको वेल बींग होना चाहिए। और डिजीज फ्री का मतलब क्या है? कि आपको केवल डिजीज नहीं है। तो अ पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट कैन नॉट बी हेल्दी।
ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू जस्टिफाई अ पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट ही कैन नॉट बी हेल्दी। ठीक है, हेल्दी क्या है? इट रेफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट ऑल्सो, कि आपका जो सोशल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर डिजीज फ्री में अगर बात करते हो तो केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं कि हाँ, अगर मान लीजिए सौम्या जो है बहुत ही, आज इसके बॉडी में किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है डिजीज वाला, तो हम कहेंगे सौम्या इज डिजीज फ्री। तो सौम्या इज एन इंडिविजुअल। लेकिन सौम्या जहाँ रहता है उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो कभी कभी सौम्या भी जो है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, तो क्या हम कहेंगे कि वो हेल्दी भी है? कहेंगे क्या? अच्छे नहीं है तो अच्छा बिहेव नहीं करता है वो, और जब अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको हेल्दी नहीं मानेंगे। तो हेल्दी तभी वो हेल्दी जो रेफर करता है उस इंडिविजुअल के साथ साथ उसका फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट भी। लेकिन डिजीज की बात जब करते हैं तो केवल हम इंडिविजुअल को देखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। ठीक है, डिजीज फ्री पर्सन जो है उसमें गुड हेल्थ हो भी सकता है और पुअर हेल्थ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक पर्सन पूरी तरह से हेल्दी है तो हम क्या कहेंगे? ही हैज गुड हेल्थ। अगर वो सभी एस्पेक्ट में हेल्दी है तो हम उसको बोलेंगे हाँ, दिस पर्सन, दिस बॉय हैज वेरी गुड हेल्थ। वाई? बिकॉज हिज सोशल एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड, he is physically well, he is socially also well, he is mentally also very sharp। तो उसको कहेंगे कि वो completely healthy है, he has very good health। Recollect all of you, this is one of the very important example, sorry, questions may come in the exam, what is difference between disease free and being healthy। तो today we'll finish off here। ठीक है, tomorrow we'll